हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेसन प्लान 1 मैथमेटिक्स, सब सब्जेक्ट अरिथमेटिक, टॉपिक फ्रैक्शंस, क्लास 8th, ड्यूरेशन 40 minutes. General objectives: to develop the knowledge of facts and phenomena of mathematics to students, to develop the logical and thinking power of students, to develop the interest of students towards mathematics, to develop scientific and mathematical attitude among students, to develop in the students the habit of concentration, self-reliance and innovative ideas. Specific objectives: first point, knowledge. Students will be able to recall fractions. Students will be able to recognize equivalent fractions. Understanding: students will be able to see relationship between fractions and equivalent fractions. Students will be able to cite examples of equivalent fractions. Students will be able to see relationship between various equivalent fractions. Application: students will be able to establish hypotheses on equivalent fractions. Students will be able to reason out the concept of equivalent fractions. Material aid: chalk, duster, blackboard, pointer. Previous knowledge: students are familiar about natural numbers. Introduction: इसमें हम टेबल बना लेंगे सीरियल नंबर, pupil teacher activity और students activity. Question 1: what are counting numbers? Answer है natural numbers. Question 2: how do we represent division of two natural numbers a and b? Answer है a upon b. Question 3: which numbers are represented in the form of a by b? इसको कर देंगे हम problematic question. और statement of aim: today we will study about fractions. Next page पर एक टेबल बना लेंगे. हेडिंग्स देख लीजिए. Serial number, teaching point, expected behavioral objectives, pupil teacher activity, students activity, teaching method, aid, technique and evaluation. तो ये हमारे एक टेबल बन गई है जिसमें हमने अपने ये हेडिंग्स डाल दिए. फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, फ्रैक्शंस. बिहेवियरल एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज. डेवलपमेंट्री क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन: इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ होल ग्रेटर देन द होल? इज अ पार्ट ऑफ अ होल ग्रेटर देन द होल? आंसर है स्मॉलर. क्वेश्चन 2: व्हाट आर फ्रैक्शंस? इसका प्रोबेबल आंसर. और टेक्निक आ गई इसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक. अब एक्सप्लेनेशन में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन न्यू नॉलेज. एक्सप्लेनेशन: fractions. Fractions are numbers representing part of a whole. A fraction is a number of the form a by b such that b is not equal to 0. In a fraction a by b, a is a numerator and b is denominator. टेक्निक आ जाएगी एक्सप्लेनेशन टेक्निक. इसमें हम ये लगा देंगे मिनिएचर. तो फ्रैक्शंस बना दिया है मैंने इसमें 1/2, 1/3, 1/4 करके इनके फ्रैक्शंस बना दिए. एग्जाम्पल्स 1/2, 2/3, 5/7 एट्सेट्रा. अब इवैल्यूएशन में पहले एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन लर्न्ड नॉलेज. इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 7/12? आंसर है न्यूमरेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 12. टेक्निक है क्वेश्चनिंग टेक्निक. सेकेंड क्वेश्चन: गिव एन एग्जाम्पल of a fraction
with 2 as the numerator. आंसर लिख दिया 2/3. तो ये हमारा एक पूरा टीचिंग पॉइंट इसमें कवर हो गया. नेक्स्ट पेज से सेकंड टीचिंग पॉइंट. फिर से एक बार हेडिंग्स देख लीजिए. सेम हेडिंग्स हैं. सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, expected behavioral objectives, pupil teachers activity, students activity, teaching method aid technique and then evaluation. तो ये हमारी हेडिंग्स आ गई. अब करते हैं टीचिंग पॉइंट 2. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज प्रीवियस नॉलेज. Developmentary questions. Question 1. Which numbers are in the form of a by b where b is not equal to 0? Answer आ जाएगा fractions. Question 2. What is an equivalent fraction? इसमें कर देंगे probable answer. और टेक्निक है questioning technique. Next explanation के लिए expected behavioral objectives में students will be able to learn new knowledge. Pupil teachers activity में explanation. Equivalent fractions. 2 or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions. Multiplying and dividing a fraction by a same non-zero number gives an equivalent fraction. Technique है explanation technique. Next evaluation के लिए expected behavioral objectives में लिख दिया students will be evaluated on learnt knowledge. Evaluation के questions हैं give an equivalent fraction of 1/2. आंसर में लिख देंगे हम 1/2 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो we will get 2/4. टेक्निक है questioning technique. Question 2 evaluation में 4/5 is equal to fill in the blank upon 10. तो उसको कर दिया 4/5 इक्वल टू दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 10. तो ये हमारा एक पूरा टीचिंग पॉइंट इसमें कवर हो गया. टीचिंग पॉइंट 3. फिर से वो एक बार हेडिंग चेक कर लीजिए. सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, expected behavioral objectives, pupil teachers activity, students activity, teaching method aid technique, evaluation. सेम हेडिंग्स हैं तीनों पेजेस में. टीचिंग पॉइंट है मॉडल क्वेश्चंस. एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज. डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस में राइट 4/5 इन फ्रैक्शन फॉर्म. इसको लिख दिया स्टूडेंट्स एक्टिविटी में 4/5 और ये है क्वेश्चनिंग टेक्निक. क्वेश्चन 2 राइट 2/6 इन द फॉर्म विद डिनोमिनेटर 18. ये आ गया प्रोबेबल आंसर में. एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू कैलकुलेशंस. ये आ जाएगा बिहेवियरल एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में. फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन करना है. 2/6 इक्वल टू, अब इसको हमें डिनोमिनेटर में 18 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 18. आंसर है 6/18 और ये है हमारी एक्सप्लेनेशन टेक्निक. अब हमें आगे क्वेश्चंस भी देने हैं. तो टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 7/8 एंड 9/12. 7/8 को आगे कर लेते इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए. तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया हमें मिलेगा 14/16. 7/8 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 21/24. 7/8 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 28/32. नेक्स्ट पार्ट 9/12 को कर देंगे सेम. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 18/24. 9/12 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 27/36 और 4 से मल्टीप्लाई करा तो 36/48.
इसमें ये टेक्निक है ड्रिल एंड डिडक्टिव मेथड। अब नेक्स्ट आ जाएगा इवैल्यूएशन। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड, दे विल कैलकुलेट द क्वेश्चंस। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में pupil teacher will observe the class. Evaluation questions में write a fraction with 12 as numerator. Write the answer आ जाएगा 12/13 या कुछ और भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर में 12 होना चाहिए। Question 2, write the equivalent fractions of 7/5. तो 7/5 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, 14/10 आ जाएगा। और इस 7/5 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 21/15 आ जाएगा। तो ये हमारे 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है रिकैपिटुलेशन। उसके क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a/b कॉल्ड? आंसर लिख देंगे फ्रैक्शंस। Question 2, what are numerators? आंसर लिख देंगे numerators are the selected part out of the whole. Question 3, what is equivalent fraction of 1/5? तो उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/10। कोशिश करिए रिकैपिटुलेशन आपका उसी पेज पर आ जाए, पीछे वाले पेज पर टैबुलर फॉर्म में, जो हमने पीछे टेबल में लिखे थे। पॉइंट 3 के बाद एकदम से रिकैपिटुलेशन वहीं आ जाए। मेरे पास स्पेस नहीं थी वहाँ पर, टेबल कंप्लीट हो गई थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया। ऑब्जर्वेशन, pupil teacher will observe pupils activities from time to time and review their performance in the class. blackboard work में सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक लिख दिया। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सब सब्जेक्ट अरिथमेटिक, टॉपिक फ्रैक्शंस। Fractions are expressed in p/q form where q is not equal to 0 और fractions is equal to numerator upon denominator. कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखने का हो। होमवर्क क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म: 7/8, 3/5 and 2/7। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 17/9। उसके बाद ये कॉलेज से आपको मिला होगा ऑब्जर्वेशन टेबल, तो इसमें आप देख लीजिए, अगर नहीं मिला है तो आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट्स हैं: ब्रॉड एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन, स्पेसिफिक एरिया ऑफ फीडबैक, और उसके बाद जो फीडबैक है वो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।